Good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 56 turn, and in this lecture, I am going to cover the next topic of chapter 5, part B, accounting ratio. In this lecture, I am going to cover solvency ratio, formulas of solvency ratio, as well as numericals covering solvency ratio. What is solvency ratio? These ratios are calculated to assess the ability of the firm to meet its long term liabilities and when they become due. Solvency ratio है जो कि आपको बताता है कि firm की solvency position क्या है, how is firm is able to meet the liabilities when they become due or not. These ratios reveals as to how much amount in a business has been invested by proprietor and how much amount has been raised from outside sources. By this ratio we can come to know what is the debt position of the business. Solvency ratio discloses the firm's ability to meet the interest cost regularly and long-term indebtedness at maturity. By solvency ratio, we can come to know whether company is able to meet the interest or not, or whether company is able to pay the debt at the time of maturity or not. Some ratios covering in solvency ratios are: number 1, debt equity ratio; number 2, total assets to debt ratio; number 3, proprietary ratio; number 4, interest coverage ratio. Now see number 1, debt equity ratio. This ratio expresses the relationship between long-term debt and shareholders fund. Debt equity ratio is equals to debt upon equity or long-term debts upon shareholders fund. It indicates the proportion of fund which are required by long-term borrowing. By debt equity ratio we can come to know what is the proportion of fund which is required for long-term borrowing in comparison to shareholders fund. This ratio is calculated to ascertain the soundness of long financial policies of the company. By this ratio we can come to know the soundness or financial position of the firm. Long-term debt, these include long-term borrowing and long-term provisions which mature after 1 year. लॉन्ग टर्म डेट में वो सारे आइटम्स आते हैं जो 1 ईयर के बाद मैच्योर होते हैं. फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा. ये सब लॉन्ग टर्म डेट में कवर करते हैं. शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये आइटम्स तो आपको पता ही है कि क्या क्या आइटम कंटेन करता है, और ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था. तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आते हैं. शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आइटम्स आते हैं. रिजर्व एंड सरप्लस में आपके कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व सारे आइटम्स आ जाते हैं. Then number 2 is total assets to debt ratio. This ratio is a variation of the debt equity ratio. Debt equity ratio का थोड़ा सा वेरिएशन है, और इसमें हमें इंडिकेशन पता चलता है कि debt equity ratio से अपने हमारे assets की क्या पोजीशन है to the debt. By this ratio we can come to know the relation of total assets to the long term debt. इसका फॉर्मूला है बेटा total assets to debt ratio का total assets upon debt और total assets upon long term debt. This ratio is usually expressed as a pure ratio 1:1 और 2:1. इसका जो आपका pure ratio है that is called is 1:1 और 2:1. टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर या इसके बाद नीचे जो आपकी वैल्यूज आती हैं वो आपकी इंडेप्टनेस को शो करती हैं. टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. आपके क्या क्या आइटम्स आ जाते हैं नॉन करेंट एसेट्स में? टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और प्लस करेंट एसेट्स. ये टोटल एसेट्स का पार्ट है. डेप्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. एग्जाम्पल ऑफ डेप्ट आर debentures, mortgage loan, bank loan from financial institution and public deposit, etc. Now see number 3 is proprietary ratio. This ratio indicates the proportion of total assets funded by owners or shareholders. It is calculated as under proprietary ratio is equals to equity upon total assets or proprietors fund or shareholders fund upon non-current assets plus current assets. प्रोप्राइटरी रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? अ हायर प्रोप्राइटरी रेशियो जनरली ट्रीटेड एज इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन. जितना प्रोप्राइटरी रेशियो बढ़ता जाएगा कंपनी की साउंडनेस उतनी बढ़ती जाती है. Then number 4 is interest coverage ratio. This ratio is also termed as debt service ratio. इसको हम debt service ratio भी कहते हैं. और ये ratio कैसे कैलकुलेट होता है? By dividing profit before charging interest and income tax by fixed interest charges. Interest coverage ratio is equals to profit before charging interest and income tax upon fixed interest charges, and it comes in times. Profit before interest and income tax is to be taken for calculation of this ratio because this is the amount of profit out of which interest and income tax to be paid. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इससे हमें कितना इंटरेस्ट और टैक्स हम पे कर सकते हैं. ठीक है. और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस में क्या इंक्लूड होता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स. लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स में जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो इसमें शो होता है.
Now see the numericals. Question number 27. Calculate the debt equity ratio from the following: equity share capital 3 lakh, preference share capital 50,000, reserve 1 lakh 60,000, profit and loss balance minus के 50,000, this is accumulated loss. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2 लाख एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट 60,000. सी बेटा आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट डेप्ट इक्विटी रेशियो. डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. लॉन्ग टर्म डेप्ट में आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपका प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट गिवन है. तो लॉन्ग टर्म बोरिंग इज 2 लाख और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है 60,000. तो हमने इसको 2 लाख प्लस 60,000 कर दिया. तो वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, दैट इज ठीक है. तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया आपका 2,60,000. नाउ सेकेंड इज शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस. ये लॉस है फर्म का, एक्यूमुलेटेड लॉस है. इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है बेटा 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, रिजर्व 1,60,000 एंड माइनस के 50,000. तो ठीक है. तो ये आपका आ गया 2,60,000. वो शेयर होल्डर्स फंड इज 4,60,000. डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट कर दिया. Debt upon equity यानी 2,60,000 upon 4,60,000, it is 0.57 ratio 1. Now see question number 31. Calculate debt equity ratio of the from the following. Total assets given है 2,30,000, total debt 1,50,000, current liabilities 30,000. डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है आपको बेटा. डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेप्ट और अपॉन इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. लॉन्ग टर्म डेप्ट इज टोटल डेप्ट माइनस करेंट लाइबिलिटीज. ठीक है. लॉन्ग टर्म डेप्ट को कैलकुलेट करने के भी फॉर्मूला है बेटा टोटल डेप्ट माइनस करेंट लाइबिलिटीज. 1,50,000 माइनस 30,000, इट इज़ 1,20,000. शेयर होल्डर्स फंड टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट, तो 2,30,000 माइनस 1,50,000, इट इज़ 80,000. The debt equity ratio is 1,20,000 upon 80,000, it is 1.5 ratio 1. Now see question number 35 beta. Calculate total assets to debt ratio from the following information. Shareholders fund given है, reserve and surplus given है, total debt given है, trade payables given है, bank overdraft given है. You have to find out total assets to debt ratio. Second वाला ratio है बेटा solvency ratio का. Total assets to debt ratio का formula है total assets upon long term debt. Long term debt is 8% debenture जो इसमें given है items long term debt के. The items which is given in this is, see, 8% डिबेंचर्स प्लस लोन फ्रॉम बैंक. ये दो आइटम्स गिवन है लॉन्ग टर्म डेट में. 8% डिबेंचर्स प्लस लोन फ्रॉम बैंक, इट इज 30 लाख प्लस 10 लाख 40 लाख. टोटल एसेट शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल डेट आई 8% डिबेंचर्स प्लस लोन फ्रॉम बैंक प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. ये सारे आइटम्स आपके शेयर होल्डर्स फंड के हैं. 2 लाख प्लस 50,000, 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 30 लाख प्लस 10 लाख प्लस 8,60,000. So 73,60,000 is total assets. Total assets to debt ratio is 73,60,000 upon 40 lakh. It is 1.84 ratio 1. Now see beta question number 39. Following particulars are extracted from the books of Bharat. See beta, following particulars are extracted from the books of Bharat Rubber Limited. Share capital is given 3,20,000. General reserve 1 lakh. Profit and loss balance 48,000. 9% debenture 1,20,000. Or current liabilities 3,04,000. You are required to work out on for the ratio debt equity ratio, total assets to debt ratio, proprietary ratio. तीन ratios आपको find out करने हैं. Number 1 debt equity ratio, long term debt upon shareholders fund. Long term debt is 9% debenture. ये given है इसमें देखिए 9% debenture, that is 1,20,000. Shareholders fund is share capital plus general reserve plus P&L balance. ये तीन items यहाँ पे given है बेटा. Share capital plus general reserve plus P&L balance. ऐड कर दिए 4,68,000. तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इज 1,20,000 अपॉन 4,68,000. इट इज 0.26 रेशियो 1. नाउ सी सेकंड टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो. टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट. टोटल एसेट्स टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस प्लस 9% डिबेंचर प्लस करंट लाइबिलिटीज. ये आइटम्स टोटल एसेट्स में आ जाते हैं. 3,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 48,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,04,000, इट इज 8,92,000. लॉन्ग टर्म डेप्ट में 9% डिबेंचर आते हैं, डेट इज 1,20,000. तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज 8,92,000 अपॉन 1,20,000. इट इज 7.43 रेशियो 1. Number 3 is proprietary ratio, equity upon total assets
और शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो इक्विटी आपने कैलकुलेट कर ही लिया है पीछे वाले उससे, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड इज 4,60,000 और टोटल एसेट्स आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 8,92,000 डिवाइड कर दिया तो इट इज़ 0.5247 और 52.47% आ गई। प्रोप्राइटरी रेशियो का बेटा आप उसमें भी कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट्स में भी, और इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Now see question number 42. Fixed assets 12,80,000, current assets 7,20,000, 8% debenture 5,60,000, 10% loan, mortgage loan 3,30,000, bank overdraft 2,20,000, trade payables 1,90,000. सी प्रोप्राइटरी रेशियो इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स आ जाती हैं आपकी। देखो फिक्स एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, आपने इसका टोटल कर लिया 20 लाख। इक्विटी इज टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। टोटल एसेट्स लॉन्ग टर्म डेट में आपके सारे आइटम आ जाते हैं 8% डिबेंचर, 10% मॉर्गेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म डेट और ट्रेड पेबल आपका शॉर्ट टर्म उसमें आ जाती है लाइबिलिटीज़ में। तो ये डेट इज 7 इसको टोटल करा आपने, तो ये जो है 20 लाख माइनस 13 लाख तो 7 लाख आ गया। तो प्रोप्राइटरी रेशियो 7 लाख अपॉन 20 लाख 35% और 0.35। आप इसको चाहे परसेंटेज में इंटू 100 करके कैलकुलेट कर लीजिए या 0.35 इसका आंसर है, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। Now see question number 45. Following from the following information, calculate interest coverage ratio and give your comment also. Net profit after interest and tax 1,20,000. Rate of income tax 550%, 15% debenture 1 lakh, 12% mortgage loan 1 lakh. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है बेटा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। इन द क्वेश्चन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 50 गिवन है। देखो आपको बेटा ये देखिए रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है। इट मीन्स अगर हमने टोटल प्रॉफिट को टोटल उसको एज्यूम कर लिया 100 तो उसमें से 50% रेट ऑफ इनकम टैक्स माइनस कर दिया तो आपका जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया 50। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होना चाहिए 100, मतलब टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स मस्ट बी 100 और उसमें से 50 टैक्स माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 50। और इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,20,000 क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000 तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ जाएगा 100/50 इंटू 1,20,000 इट इज़ 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन 15% डिबेंचर दोबारा समझ लीजिए टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 100 उसमें से 50 हमने माइनस कर दिया 50% इनकम टैक्स माइनस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 100 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 50 हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1,20,000 है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा 100/50 इंटू 1,20,000 इट इज़ 2,40,000। तो इंटरेस्ट ऑन 15% डिबेंचर निकाल लीजिए 1 लाख का डिबेंचर है उसका 15% 15,000 इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन 12% हो गया 1 लाख का 12% कैलकुलेट कर लिया 12,000 इसका इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन हो गया तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 15,000 प्लस 12,000 27,000। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स कितना हो गया 2,40,000 अपॉन 27,000 तो आपका जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 9.89 टाइम्स। कितना हो गया 9.89 टाइम्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मैंने सारे टॉपिक्स के सारे फॉर्मूलाज के एक क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल अदर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो वॉट एवर गिवन इन द असाइनमेंट्स। कंप्लीट योर असाइनमेंट। आई नीड योर असाइनमेंट। I will start checking assignments as soon as your syllabus will complete and on the basis of assignment I will give you marks in practicals also. So complete your assignment, start revising, pre-boards are coming, do practice of pre-boards also. You get the syllabus और syllabus के accordingly आप pre-board की preparation करिए बेटा। Thank you, have a nice day.